Good evening and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I am Padmaja Joshi. For the last 2 weeks, repeated images are coming in from the UK. From Leicester to Birmingham, where places of worship, Hindu houses, shops have been attacked by mobs of Muslim radicals. Multiple arrests have been made. At least 3 people have been sentenced for possession of a weapon. But the worst is that in all of this, there is the phenomenon of victim blaming. When these attacks happened, the excuse given was that the mob was protesting against an invitation given by the temple, by the Hindu community, to Sadhvi Ratambara. She was called an Islamophobe and a fascist in order to make the point that all this violence was only a reaction to an invitation given to a fascist. However, what no one actually told you is this, that the invite to Sadhvi Ratambara had already been postponed. Also, that she has in the past made multiple such visits to the UK, to these same venues. You may have your differences about her politics, about her history, maybe even her ideology. But to use an invitation to her in order to whitewash blatant communal violence is extremely disingenuous. Also, it was said that these attacks were actually prompted by naked Hindu phobia. Hate that the leaders of this violent pack made no effort to mask. Listen to them in their own words describe the Hindu community with derision, contempt, and unvarnished venom. If Hindu temples like this do not stand by the BJP and the RSS, they need to come out in open official statements and state that they don't stand by the BJP and RSS. We will not accept half-hearted condemnation. We will not accept imams coming out and saying they don't stand without valid proof. We've had enough, and the people of Birmingham will stand up. Takbir! Just your little bicep telling me you're no gangster. Just your little walking and talking rubbish is a living proof that you're no gangster. You're just fake wannabes. You've been watching too much Bollywood movies, Shah Rukh Khan. Watching too much Bollywood films and thinking they could come on the streets of Birmingham, come in the streets, our ends, and come deal with us. We will teach you and we'll give you the respect that you deserve. So you want to beef with us? Come bring it to the streets and we will show you. RSS and BJP people are not welcome in Birmingham. They're not welcome in Leicester. If you come out on the streets, we are going to be here to meet you. Saying all of this, the mob is making absolutely no attempt to hide their real intention and their feelings towards the Hindu community. Then why was Sadhvi Ratambara dragged in, if only to use as a cover for what at the end of the day has been proven to be nothing more than a communally motivated attack? All right, joining us now is Sadhvi Ratambara herself. She's the founder of the Param Shakti Peeth. Sadhvi जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो वायलेंस हुआ है लेस्टर में, वो इस वजह से हुआ कि आप यूके जाने वाली थी और लोग आपके वहां आने से खुश नहीं थे, तो ये अटैक नहीं था, ये एक प्रोटेस्ट था और आपके खिलाफ था। पहले तो हम लेस्टर जा ही नहीं रहे थे। लेस्टर में हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा कार्यक्रम तो 5 जगह पर था, जो कि पहले ही पोस्टपोन हो गया था, क्योंकि अमेरिका के प्रवास में मुझे कोविड हो गया था, तो हमने इंग्लैंड का कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया था। लेस्टर में तो हम जा ही नहीं रहे थे, और लेस्टर में भारत आके हमें पता चला कि लेस्टर में तकरीबन 1 महीने से तनाव है। हम जा रहे थे बर्मिंघम, नोटिंगम, लंदन, इल्फर्ट, ऐसे 4 जगह मेरा प्रोग्राम था, जो हमने पहले ही पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि वहाँ मुझे अमेरिका में कोविड हो गया था प्रवास में। लेकिन मेरा कार्यक्रम पोस्टपोन होने के बाद भी बर्मिंघम के मंदिर पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? हिंसक प्रदर्शन इसलिए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, जो आप हैं, अगर संघ परिवार से हैं, आप वहां पर वेलकम नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, हिंदुत्ववादियों के खिलाफ है, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। हो सकता है, आप सही कह रही हूं, लेकिन जो भी है, आप देखो कि हमारे आस्था के मंदिरों पर इस तरह आक्रमण करना,
मंदिर में तो भक्त जाते हैं ना भगवान के, वो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस तो नहीं होता ना, वहाँ कोई संप्रदाय और पार्टी का विषय तो नहीं होता ना। मंदिर में तो भगवान का भक्त जाता है ना, उसकी आइडेंटिटी इतनी होती है कि वो सनातन के प्रति निष्ठा रखता है, इसीलिए वो मंदिर जाएगा। और मंदिर के प्रति क्या विद्वेष है? अगर बर्मिंघम में मेरे कार्यक्रम का भी, जो कि कार्यक्रम हो ही नहीं रहा था, पहले से ही पोस्टपोन था, अगर उसका भी विरोध है तो फिर कांच की बोतलें मंदिर में फेंकने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप हमारे आस्था के केंद्र को टारगेट बना रहे हैं। आप अपने हिंसा के बल पर भय पैदा करके समाज को भयभीत कर रहे हैं और अपने वोट बैंक के बल पर राजनीतिक लोगों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। यही दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो पहले से ही पोस्टपोन था, इसलिए हम सीधा एलए से भारत आ रहे थे और हमको लंदन से ट्रांजिट करना था। जब मैं लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे पहुंची तब मुझे पता चला कि हम वहाँ ट्रांजिट नहीं कर सकते, तो फिर मुझे एक दिन रुकना पड़ा। अगले दिन फिर हम लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क होते हुए भारत वापस आए। हमारा इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम बहुत पहले से ही पोस्टपोन हो गया था और फिर एक बार प्रदर्शन, दोबारा फिर प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन, गालियां दी जा रही हैं, अपमान किया जा रहा है और इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप तो जानती हैं पद्मजा जी, भारत की जो भी हमारा चिंतन, हिंदुओं का चिंतन है, वो सर्वे भवन्तु सुखिना का ही चिंतन है। सारे परिवार, सारे विश्व को अपना परिवार मानना, वसुदैव कुटुंबकम की भावना, ये हमारे धर्म का मूल आधार है। इसलिए चींटी से लेके ब्रह्मा तक हम एक ही चेतना का दर्शन करने वाले लोग हैं। हम दिए और बत्तियां नहीं देखते, हम उसमें एक ही ज्योत देखने वाले लोग हैं। उन सबके ऊपर इस तरह का प्रहार करना, आघात करना, भय पैदा करना, ये कहाँ तक इसका औचित्य है? ये तो ब्रिटेन की सरकार को भी सोचना पड़ेगा और हमारे अपने समाज को भी सोचना पड़ेगा। इस आग में तो सभी झुलसेंगे। अगर दुर्जनों का दमन नहीं किया गया और सज्जन निष्क्रिय रहे तो ये स्थितियां हर जगह बनने वाली हैं। और इंग्लैंड तो इसमें, हमें तो यहाँ आके पता चला, लेस्टर में तो हमारा कार्यक्रम था ही नहीं। अब ये झूठ फैलाया जा रहा है कि हमारे कार्यक्रम की वजह से वहाँ हिंसा हो रही है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि असत्य अभी जो है वो 1 मिनट में पूरे विश्व की परिक्रमा करके आ जाता है, सत्य अभी तैयारी कर रहा होता है। तो ये तो एक बहाना है। ये तो इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं, भले ही वो मुट्ठी भर हों, उनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, भारत की छवि को बिगाड़ना और भारतवंशियों को जो है भयभीत करना, ये सब चल रहा है। यही कोशिश अमेरिका के अंदर भी करने की गई थी और इंग्लैंड के अंदर तो इसका विभत्स स्वरूप है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला, मैं वो स्टेटमेंट आपको कोट करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, हिंदुत्व हेट प्रीचर Sadhvi Nisha Ritambara, who has incited hatred against Muslims and Christians in India and has urged her supporters to wage war against Muslims, has been granted entry to the UK. We call on the UK Home Office to immediately revoke her entry. वो कह रही हैं कि आप नफरत फैलाती हैं, आप मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलती हैं, आप उन पर वॉर वेज करती हैं, उनके खिलाफ आपने एक वॉर डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर आपको यूके में एंट्री क्यों दी जाए? देखिए, ये तो मेरा सत्य सब जानते हैं पद्मजा जी। हम मनसा वाचा कर्मणा मनुष्यता के लिए मैं काम करती हूँ। हमारी किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ मेरी उस मूवमेंट के साथ भागीदारी रही है। उसके बाद इतने वर्षों से मैं बच्चों के लिए कार्य कर रही हूँ, ये सारा विश्व जानता है। और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मेरे कार्यक्रम हुए हैं, जहाँ के सांसदों ने भी उसमें भाग लिया है। और मैं इंग्लैंड पहली बार नहीं जा रही थी, 20 वर्ष हो गए मुझे, तकरीबन 25 वर्ष हो गए मैं पूरे विश्व का भ्रमण करती हूँ, सारे समाज से बात करती हूँ और खाली हिंदू समाज से ही बात नहीं करती हूँ। आप जानते हो कनेक्टिकट एक स्टेट है, वहाँ न्यू टाउन एक सिटी है जहाँ के अमेरिकन गोरों के बच्चे वात्सल्य में आते हैं, 20-20, 25-25 दिन हर साल
मेरे कार्यक्रम होते हैं, हमारे लिए मानवता ही सर्वोपरि है, यही मेरे धर्म की मुख्य शिक्षा है। अब कहने के लिए तो आप जितना मर्जी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से असत्य बोल बोल कर आतताई हमें सिद्ध कर दो, लेकिन आप कोई एविडेंस भी तो दोगे। किसी भी व्यक्ति की जीवन को देखना तो उसके कर्मों से देखा जाता है ना। तो मेरे कर्मों को देखिए, मेरे कार्य को देखिए, और 25 साल की मेरी यात्राएं जो सारे विश्व में हुई हैं, जिसमें सारा समाज शामिल होता है। तो ये मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उनको बहाना चाहिए। और वो भारत के प्रति विश्व भमन है ये, और हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारे सनातन के ऊपर आघात है ये। और लोग पैसे के बल पर, हिंसा के बल पर, भय पैदा करके और वोटों के बल पर ये सारा करने में सफल हुए हैं। ये तो निश्चित करना अभी बाकी है ना कि जो मेरे पे आरोप लगे हैं वो उसका निरीक्षण भी तो किया जाएगा ना। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ना कोई महापाप तो नहीं था पद्मजा जी। 500 साल तक हमारे पुरखों ने वो लड़ाई लड़ी है। हम घी के दिए नहीं जला पाए, पर अपने रक्त की अंजलियां देते रहे हैं। हमारा समाज वो है जिसने हिंसा झेली है, जिसने आतंक को झेला है, हमने उसकी कीमत चुकाई है। तो ये सारी बातें तो वितंडावाद है जो एक तरह से सफल होता दिख रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि कोई भी किसी भी तरह का जो वातावरण वहां निर्मित किया जा रहा है वो कार्यक्रम का विरोध था, तो फिर कार्यक्रम तो हो ही नहीं रहा, फिर क्यों विरोध है, फिर क्यों प्रदर्शन है? और अगर प्रदर्शन है तो उसमें हिंसा क्यों है? और अगर हमारी आस्था का केंद्र वो है तो आप उसमें कांच की बोतलें फेंक के गालियां देके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अगर उनको रितंभरा से नफरत है तो वो मेरे से करे ना नफरत। उन्होंने मेरे आस्था के केंद्र बिंदुओं पे अपनी नफरत इस तरह क्यों निकाली? और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है वो भारत का विरोध है, वो सनातन का विरोध है। वो हिंदू समाज को भयभीत करके हिंसा के बल पर वो क्या दिखाना चाहते हैं, ये तो निष्पक्ष होकर सबको देखना चाहिए कि ये क्या है। अगर मेरे कार्यक्रम का विरोध था तो वो पहले से ही पोस्टपोन हो चुका था, और 1 महीने से वहाँ विरोध चल ही रहे हैं। उसमें रितंभरा कहाँ से कारण है? तो कारण वो तो बहाने ढूंढे जा रहे हैं। वो ये करना है, ये क्यों करना है, क्या उसके पीछे उद्देश्य है, ये तो फिर वहाँ की सरकार को और समाज को सोचने का विषय है। ये तो दोनों ही विषय हैं, चिंतन भी और चिंता भी। क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो अटैक हुआ है, वो आपकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि आपका जो बाबरी मस्जिद पूरा मूवमेंट को लेकर के, उसे गिराने से लेकर के आपका जो एसोसिएशन था, उसके चलते प्रोटेस्ट ना सिर्फ ब्रिटेन में हुआ है बट यूनाइटेड स्टेट्स में भी हुआ है। इसका विरोध किया जा रहा है। और क्या आप ये बैकलैश क्या देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी आप ज्यादा देख रही हैं? डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंस की जाती है तो एक डिफरेंशिएशन किया जा रहा है कि ये है हिंदुइज्म जिसका हम विरोध नहीं करते, और ये है हिंदुत्व जिसकी एक सिंबल है साध्वी रीतांबरा, जिसकी एक सिंबल है आरएसएस, जिसकी एक सिंबल है बीजेपी, जिसका एक सिंबल है विश्व हिंदू परिषद। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पूरी दुनिया में हिंदू समाज का बहुत सम्मान है। पूरी दुनिया में हिंदू और हिंदुत्व वो वैसे ही है जैसे जल और जल की आर्द्रता को अलग करके देखना। ये वैसे ही है जैसे आग और उसकी अग्नि तत्व को अलग करके देखना। ये तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में हिंदू समाज का भारी सम्मान है, क्योंकि हिंदू समाज ने अपने कर्तव्य से, देखिए पद्मजा जी, मैं बच्चों का कार्य करती हूँ। जो देवकी माँ की कोख से छूट जाते हैं उसे यशोदा पालती है, और हिंदू समाज भी अगर भारत भूमि को अपनी देवकी माँ समझता है तो जिस भी भूमि पे वो विदेश में है उसे अपनी यशोदा माँ समझता है। इसलिए भारी सम्मान हिंदू समाज का पूरे विश्व के अंदर है। ये जो चंद लोग हैं जो अपनी हिंसा प्रकट करके विद्वेष की भावना रखते हैं, उनके कारण ये सब कुछ होने वाला नहीं। सारा समाज अच्छी तरह जानता है। लोगों ने जिंदगियां खपा दी हैं विदेश की धरती पर रहते हुए, अपना परिश्रम करते हुए, तो उनका वो सदकर्म ऐसे विफल नहीं जाने वाला। ये तो इस तरह वातावरण बनाया जा रहा है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि भारत की परंपरा को जो है अपमानित किया जाए।
हिंदू और हिंदुत्व इसको अलग करके क्यों देखना? और हिंदुत्व या हिंदू ये आतताई आतंक उससे जुड़ ही नहीं सकता। हमने आतंक झेले हैं, आतंकी हम कभी रहे नहीं हैं। लेकिन वही वाली बात है कि इस तरह के वातावरण को निर्मित किया जा रहा है, छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि वो कितने अहिंसावादी हैं जो मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। उन्हें अगर किसी विचारधारा का विरोध भी करना है तो वो शालीन प्रदर्शन भी तो कर सकते हैं ना। आप कांच की बोतलें फेंक रहे हो, आप गालियां दे रहे हो, आप जो हो वो तो आपके कर्तृत्व से पता चल रहा है ना। तो उन लोगों के द्वारा कही गई ये बातें हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? पद्मजा जी। साध्वी तांबेरो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। When talking about protesting against fascism, if you resort to violence, it says a lot about your ideology and what you really stand for. You may have differences, but violence in the guise of protest is inexcusable, especially when it's only masking a Hindu hate. बहुत बहुत धन्यवाद आपका साध्वी जी हमसे बात करने के लिए।